Okay, beta. So after hydrocarbon alkanes, this is hydrocarbon alkenes and a little bit of journal introduction. That the journal formula, they are called unsaturated hydrocarbons. Okay, they are unsaturated hydrocarbons. Why they are unsaturated hydrocarbons? Because they have a carbon double covalent bond carbon present. So in any molecule in which the addition is possible, जिन molecules में addition reaction possible होगे वो unsaturated कहलाएंगे. ठीक है, तो हमने कहा unsaturated hydrocarbon. Yes, we have alkenes, alkynes and benzene ring are basically the hydrocarbons, out of which हमारे पास unsaturated hydrocarbons में alkenes आते हैं because they contain carbon carbon double bond. बाकी बेंजीन की बात जो है वो आगे जाकर आएगी. क्लियर? दूसरी बात, they are obtained, they are not obtained by the fractional distillation. अच्छी तरह याद रखिएगा, they are obtained by the cracking of long chain alkanes. ठीक है, एक कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिल में आता है, जहन में आता है, सॉरी. कंफ्यूजन क्या है? एल्केन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से, और एल्कीन्स उन एल्केन्स की क्रैकिंग से मिलते हैं. ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा. व्हेनेवर दे आस्क यू अबाउट द एल्कीन्स, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन्स. सीधी बात, दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स. ये उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड्स. ठीक है, वीकर पाई बॉन्ड, इनके पास जो है वो वीकर पाई बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से दे आर बेसिकली मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्केन्स. ठीक है, अब देखें, एक बात समझने वाली है. हम कहते हैं कि नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव ड्यू टू द नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन. तो इसमें भी तो पाई बॉन्ड मौजूद है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द वीकर पाई बॉन्ड. उसका रीजन ये है कि whenever nitrogen react, nitrogen have to break all these three covalent bond. नाइट्रोजन को ये तीनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं, and a large amount of energy is required to break all these triple covalent bond. But whenever this alkene react, it undergo addition reaction only by the breaking of this pi bond. सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो अपनी जगह वैसे ही रहता है. एंड पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा. तो नाइट्रोजन वाला केस कंफ्यूजन क्रिएट ना करें. नाइट्रोजन में यू हैव टू ब्रेक थ्री बॉन्ड्स. ठीक है ना, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, जब ही नाइट्रोजन का एटम अलग होगा और वो रिएक्ट करेगा. बट इन केस ऑफ एल्कीन, इट ओनली हैव टू ब्रेक वन पाई बॉन्ड, नॉट इवन अ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट between these two carbons. So pi bonds are weaker, that's why they are more reactive. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. और they undergo addition reaction. ठीक है जनाब, इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस होते हैं. क्लियर? एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर. Okay, beta. In a bonding and structure, we know that the carbon bonded to a double bond is making 3 sigma and 1 pi bond. ठीक है, the carbon bonded to double bond contains 3 sigma and 1 pi bond. And we know from the bonding that that carbon is basically sp2 hybridized. Okay. And
the shape along that carbon is basically trigonal planar, and the bond angle along that carbon is basically 120 degree. सही है? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि you have carbon making a double covalent bond with another carbon, ethene की एग्जांपल लेते हैं, सही है? So this is going to be the shape. The shape along that carbon is basically trigonal planar with a bond angle of 120 degree. ठीक है? तो shape along that carbon atom is trigonal planar with a bond angle of 120 degrees. सही? And it is a linear carbon. And this carbon is basically sp2 hybridized. Clear? Hybridization की तरफ जाते हैं. So yes, the carbon making a double covalent bond, hydrogen, 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 and we know that all these carbon-carbon and carbon-hydrogen bonds are the sigma bond, और ये वाला bond कहलाता है sp2 bond. This one is sp2 bond. ठीक है ना? Clear? Every carbon atom have one unhybridized p orbital. ये बॉन्डिंग का रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? And these unhybridized p orbital overlap side by side above and below the sigma bond to make one single pi bond. ठीक है? तो यहां पर आपके पास एक pi bond फॉर्म होता है above and below overlapping से, and whenever we have to show the pi bonds in alkene तो हम क्या करेंगे जनाब? हम सिग्मा बॉन्ड्स को तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, and we draw the electron density of a pi bond above this sigma bond and below. Remember bonding में जो वो कहता था show the pi bonding present between these two carbons, so हम किस तरह शो करते थे? हम, ठीक है? तो this is basically the pi bonds, pi bond in alkene. ठीक है? ये alkene का pi bond है. In a similar way यहाँ पर this is basically the orbital overlapping of pi bond. ठीक है बेटा, आई होप कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, इट शुड बी ऑल क्लियर. बॉन्डिंग वाला रिवीजन है, हम अच्छे तरीके से करके आए हैं और बहुत बेसिक्स हमें नॉलेज बॉन्डिंग की ऑलरेडी है अबाउट दिस बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन. ठीक है? क्लियर? लेट्स मूव सर टूवर्ड्स बोले बेटा. सर ये एंगल के आगे 120 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। नहीं, देखो एंगल जो है ना वो डिग्रीज में मेजर किया जाता है. डिग्री सेल्सियस होता तो ये लिखा जाता. ठीक है ना? तो जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो वो प्लेस अ साइन ऑफ अ डिग्री. 90 डिग्रीज, 120 डिग्री, ये वो वाला डिग्री है. अगर आपने सी ही लिखा हुआ है सामने, कहाँ लिखा हुआ है बताओ? अब हट गया। वो नहीं, वो तो हम इतने हैबिचुअल है ना टेम्परेचर लिखने के कि वो सी लिख दिया जाता है, तो दैट्स माय फॉल्ट. ठीक है? नहीं है, वो करेक्शन कर लीजिएगा. यहाँ तक क्लियर है? बात समझ आ रही है? रिवीजन था. इट्स बेटर टू स्पेंड सम टाइम ऑन रिवाइजिंग दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टफ. तो यहाँ तक ऑल क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड? चलें आगे? यस गुड. चलें आगे चलते हैं बेटा, एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन. सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछिए. सर आपने लिखा था ऊपर कि एक कार्बन जो है तीन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक पाई। तो सर अगर हम दो कार्बन पे आ रहे हैं तो दो कार्बन तो 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक पाई बना रहे हैं। देखो हम पता है जब भी हम शेप की बात करते हैं ना तो वी टॉक अबाउट द शेप अलोंग एनी सेंट्रल एटम. किसी एक सेंट्रल एटम के अलोंग बात करते हैं. ठीक है ना? तो अगर हम इसकी बात करते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट टू कार्बन्स
बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, उनमें से किसी एक कार्बन की बात हो रही है फ्रास, ठीक है। तो चाहे आप इस वाले कार्बन की बात करें, विच इज दिस वन, so this carbon is making 1, 2, 3 sigma bond and 1 pi bond. If you talk about this carbon also making 1, 2, 3 sigma bond and 1 pi bond. तो हम किसी एक सेंटर एटम के अलोंग शेप और बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो वेन एवर कार्बन डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन एटम्स के दरमियान होगा। तो जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान होगा, उन दोनों कार्बन एटम में से कोई किसी भी एक कार्बन की अगर हम बात करेंगे, तो इट्स ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, शेप अलोंग दैट कार्बन इज ट्रायंगल प्लेनर एंड द एंगल इज 120 डिग्री। अब आप दूसरे की बात करेंगे जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन देखो, ऐसा भी तो मॉलिक्यूल हो सकता है, दिस इज अ वेरी कॉमन एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, दिस इज प्रोपीन। तो अगर मैं प्रोपीन की बात करूंगा, तो ये जो पहला कार्बन है ना, दिस कार्बन इज नॉट बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, तो द शेप अलोंग दैट कार्बन, ये एल्केन वाला कार्बन है, मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, और इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। एग्रीड। लेकिन अगर हम आगे जाएंगे, दिस इज अ कार्बन विच इज बॉन्डेड, दीज आर द टू कार्बन्स बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, ऐसा ही है। तो अगर हम इन दो कार्बन्स की बात करेंगे, लाइक इफ वी टॉक अबाउट दीज टू कार्बन, तो दीज कार्बन्स आर मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। जब भी ऐसा होगा, तो आपके पास बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का आ जाएगा, और जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। अब बात क्लियर हुई? यस सर। सर अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो उसका sp सिर्फ sp हो जाएगा? वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, मेकिंग 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। इसकी शेप लीनियर हो जाएगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसकी शेप क्या होगी? लीनियर होगी। क्लियर? दिस इज बेसिकली द कार्बन बॉन्डेड टू अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सही ना। क्योंकि देखो, ये वाला जो अगर कार्बन है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन, ये 2 बॉन्ड पेयर एंड वन 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस हो गया ना। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को तो हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हुआ, और कार्बन है 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इट्स ऑलवेज 180, सही है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में हम ऑब्वियसली ऑल द physical properties of all hydrocarbons are same, their melting point, boiling point increases as the number of carbon atom increases, ठीक है। वो सारी चीजें तो वही एल्कीन पानी। लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला की पॉइंट क्या है कि एल्कीन्स आर मोर, दोबारा लिखेंगे, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। और जब भी वो आपसे पूछा जाएगा एल्केन्स, तो आप बोलेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड। क्लियर? और दूसरा की पॉइंट ये है कि दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reaction, ठीक है। So they undergo electrophilic addition reaction. All alkenes undergo electrophilic addition reaction. They are more reactive than basically alkanes. Clear? अब electrophilic addition reaction आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन before I move towards the electrophilic addition reaction, let's talk about the combustion reaction first. आपको पता है combustion तो किसी की भी हो सकती है, so सबसे पहले हम इनके combustion की बात कर लेते हैं। The general equation of combustion is partially valid, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि on complete combustion they form carbon dioxide and water. So yes, if you have alkene reacting combustion हो रही है in the presence of oxygen, on a complete combustion they also form carbon dioxide and water. एक इक्वेशन लिख लेते हैं, और and then we move forward. हमने combustion को बहुत डिटेल में पढ़ लिया था,
while we were doing that alkene. सही है. So C2H4, this is an alkene reacting with an oxygen, forming carbon dioxide gas plus H2O. ठीक है. So this is gas as well, this is gas as well. Balancing is going to be the same. ठीक है. So how many carbon you can see? 2 carbon. So you place 2 here. How many hydrogen? So 4 hydrogen. So you place 2 here. Now count oxygen on the right hand side. 2 to the 4 plus 2 6. तो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे 3. ठीक है. सेम बैलेंसिंग होगी. क्लियर. So this is the combustion equation. क्लियर. और बाकी हमने सारी बात कर ली थी इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है. लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ये भी आप ओ लेवल्स में करके आए हैं. तकरीबन सारे रिएक्शन जो एडिशनल होंगे वो मैं आपको, जो एडिशनल बातें होंगी वो इसमें हम सीखेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में द फर्स्ट इज बेसिकली द एडिशन ऑफ ब्रोमीन. एडिशन ऑफ ब्रोमीन. ठीक है बेटा. एंड यू नो that this reaction is used as a test for the presence of alkene. यानी जब भी आपको कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन का टेस्ट करना है तो दिस इज बेसिकली द टेस्ट वी नॉर्मली यूज. क्या? एड ब्रोमीन वाटर. टेस्ट क्या है? एड ब्रोमीन वाटर. रिजल्ट क्या है? इट डी कलराइज. ठीक है. क्लियर. सो वन लाइनर स्टेटमेंट लिख लेते हैं. एड Br टू लिक्विड और ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इट डी कलराइज. क्लियर. ओ लेवल से पढ़ के आ रहे हैं. सर केमिकल रिएक्शन. सर बोले ये क्या बेटा. सिर्फ एल्कीन का टेस्ट है या फिर सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का? सारे अनसैचुरेटेड. देखिए व्हेन वी यूज द टर्म एल्कीन इसमें एल्काइंस भी ऐड हो जाता है, लेकिन एज आई सेड कि हम कभी भी एल्काइंस को डायरेक्टली नहीं पढ़ते. वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ओ लेवल्स और ए लेवल्स सिलेबस. ठीक है. तो हम जब भी एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, दिस इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एंड इट कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर द कार्बन ट्रिपल कोवलेंट. ठीक है ना. तो जब भी Okay. बात होगी डबल कोवलेंट बॉन्ड या अनसैचुरेटेड की तो ये यूज होगा. लेकिन दूसरे कंपाउंड जो एडिशन रिएक्शन करते हैं जैसे एल्डिहाइड और कीटोन भी एडिशन रिएक्शन करते हैं, उनके लिए नहीं. ठीक है ना. तो हम मेन प्रिसाइजली लिख लेते हैं कि दिस इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम. अब ट्रिपल हो तो भी ये वैलिड होगा. सही. अच्छा अब देखिए जनाब, इसका रिएक्शन बहुत आसान है. you have taken example of CH3 CH double bond CH2. Now this is propene. If you add Br to liquid, और Br2 aqueous भी ऐड हो सकता है, लिक्विड भी ऐड हो सकता है. ठीक है. तो आपके पास CH3 CH Br CH2 Br. ठीक है. तो ये था रिएक्टेंट जनाब प्रोपीन आपका. ये कन्वर्ट हो गया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन में. ठीक है. प्रोपीन से कन्वर्ट हो गया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन में. अब ब्रोमीन डीकलराइज हो जाएगा. अच्छा आपको मैंने कहीं जिक्र किया था कि केमिक, एक सेकंड में अभी वापस आ रहा हूँ बेटा उसकी तरफ. ओके सही. सही कॉपी कर दीजिए. This reaction do not require any catalyst, heating or anything. ठीक है. Just add bromine and decolor. This reaction even do not require UV light or a sunlight as well. ठीक है. So हम लिख सकते हैं कि no conditions
are required for this reaction. यानी ना आपको हीटिंग रिक्वायर्ड है ना आपको कोई चीज, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी reactive reagent with bromine and no such conditions is required. Clear? This is an example of a electrophilic addition. अब आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। सर बोले बेटा। सर ये खाली ब्रोमीन हम इसमें ऐड कर सकते हैं या कोई भी हैलाइड ऐड कर सकते हैं? एडिशन कैन टेक प्लेस विद एनी हैलोजन बेटा, ब्रोमीन भी क्लोरीन भी। नॉर्मली ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, इन सब पे ये रिएक्शन वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि सिर्फ एडिशन ऑफ ब्रोमीन की अभी बात कर रहा हूँ, आगे मैं ये बात लिखूंगा कि नोट करके इन अ सिमिलर वे क्लोरीन एंड आयोडीन कैन ऑल्सो बी एडेड, ठीक है। तो हम नोट करके ये बात लिखेंगे। लेकिन मेरा भी कंसर्न सिर्फ ब्रोमीन, चूंकि हमें टेस्ट लिखना है ना फॉर द प्रेजेंस ऑफ, इसलिए मैंने सिर्फ इसकी बात की। तो एनी हैलोजन कैन बी एडेड, ठीक है। ठीक है। चलो ओके, इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए अगर आपको मैं एक मैकेनिज्म दिखाऊं पीछे, तो आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। वो हमने किया था यहां पर बेटा इंट्रोडक्शन में, और दिस इज द मैकेनिज्म, है ना, हमने ये किया था। अभी जो मैंने रिएक्टेंट लिखा है उसमें और इस रिएक्टेंट में क्या फर्क है? ये है इथीन और वो क्या है, वो है प्रोपीन। तो प्रोपीन में फर्क क्या होगा? यू हैव टू डू द सेम मैकेनिज्म, सिर्फ यहां पर ना किसी इन दो कार्बन में से किसी एक कार्बन को आप CH3 लिख देंगे। एवरीथिंग रिमेन्स सेम। किसी एक हाइड्रोजन को आप क्या बना देंगे? CH3 बना देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी डन फॉर द प्रोपीन। इसी तरह छोटे छोटे चेंजेस करके आपको रिएक्शन पूछा जा सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको। यू कैन टेक, यू नो यू हैव ऑल दिस रिएक्शन इन योर नोटबुक। तो हम वापस आ रहे हैं और अब मैं आता हूं अपने हाइड्रोकार्बन एल्कीन की तरफ। तो ओके, देखिए, फॉर द मैकेनिज्म पर्पस आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ डिस्प्लेड फॉर्म ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। सही है। यहाँ लगाया मैंने 2 हाइड्रोजन्स और यहाँ लगाया 1 हाइड्रोजन और यहाँ लगा दिया मैंने 1 CH3, ठीक है। अब आप इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे, सो यू हैव Br, एंड वी नो दैट यू हैव टू ड्रॉ द लोन पेयर्स इफ यू वांट। बहुत जरूरी होते हैं कभी कभी। कुछ रिएक्शंस में वो इग्नोर करेगा, लेकिन इन मेनी रिएक्शन दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द मैकेनिज्म बाय योरसेल्फ। अब आपको खुद से इसका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि ये मैकेनिज्म मैं दे चुका हूँ आपके पास। जो मैकेनिज्म कॉपी हुआ हुआ है उस मैकेनिज्म में यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा हाइड्रोजन, और हमारे मैकेनिज्म में दिस इज CH3। क्लियर? तो अगर मैं इस, ये तो आप कंप्लीट कर लोगे, एक एडिशनल बात कर रहा हूं यहाँ पर ना। तो अगर मैं इस, अभी नहीं करेंगे आप, लीव फ्यू फ्यू लाइंस फॉर दिस वन, ये इतना ही पेज छोड़ दीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि दिस इज बेसिकली द रिएक्टेंट एल्कीन, सही है, और इसका रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ। तो आप इसके मैकेनिज्म को ड्रॉ करने के लिए जस्ट ड्रॉ बोथ ऑफ दीज टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड इन अ डिस्प्लेड फॉर्म। अब इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे भी एक CH3 है एंड यू हैव 1 हाइड्रोजन। देखो बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया। तो जब भी आपसे किसी भी एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म पूछा जाएगा Br2 के साथ, तो आप उसे बस इस फॉर्म में लिखना सीख लीजिए एंड कॉपी द सेम मैकेनिज्म जो हमने इथीन के लिए किया। तो कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बहुत आराम से आप सेम मैकेनिज्म, इंड्यूस पोलराइजेशन, अटैक करवाइए एंड मेक द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर? तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। कंप्लीट द मैकेनिज्म लेटर ऑन एंड देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। एंड बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी जस्ट राइट डाउन वन नोट हियर। नोट लिखेंगे क्लोरीन एंड iodine can also undergo similar reaction, ठीक है। सो थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी का फर्क हो सकता है, बट द रिएक्शन इज गोइंग टू बी द सेम। इलेक्ट डाइक्लोरो बन जाएगा आपके पास, सही है।
ठीक है बेटा, so the point is clear. Let's move forward towards the second reaction, which is very important, and the second reaction is the addition of hydrogen. Addition of hydrogen is used to convert alkene, ये भी आप O levels में पढ़ के आए, पिछला रिएक्शन भी आपने O levels में पढ़ा हुआ था, into an alkane. ठीक है, एल्कीन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं जनाब. यू हैव एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस. ओ लेवल से आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो मैं लिख देता हूं. निकल सॉलिड एज अ कैटलिस्ट, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में. ठीक है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और वहां पे रिएक्शन. नाउ अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है CH3 CH CH2 CH3, यानी प्रोपीन कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में. ठीक है बेटा, प्रोपीन कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोपेन में. आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. कोई भी रिएक्शन हो, दे समटाइम आस्क दिस रिएक्शन इन अ स्केलेटन फॉर्म. तो अगर आपके पास ये स्केलेटन फॉर्म में पूछा जा रहा है, लेट्स सपोज दिस इज स्केलेटन फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल, नाम आपको सोच लीजिएगा. सो दिस इज 4 कार्बन. थोड़ा सा मैंने ज्यादा रफली बना दिया. ठीक है, तो लेट्स डू इट लाइक दिस. ठीक है, नाउ इट्स मेकिंग अ सेंस. नाउ दिस इज ब्यूट, 4 कार्बन, सेकंड एंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो दिस इज ब्यूटूइन. क्लियर? और आप इसे 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं. इफ इट्स रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड सो ऑन, सो आप क्या करोगे? सिर्फ आप डबल बॉन्ड को एलिमिनेट कर दोगे. ठीक है, सही है, डबल बॉन्ड को एलिमिनेट कर देंगे. एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मैकेनिज्म बिल्कुल सेम कॉपी होगा. कौन सा? ये वाला. सिर्फ आपने क्या करना है, Br की जगह पर क्या सिंबल यूज कर लेना है? H और H. ठीक है, Br की जगह पर HH हो जाएगा. द मैकेनिज्म एग्जैक्टली द सेम एज एडिशन ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वाला मैकेनिज्म है, अगर आपको याद हो हमने किया था. ठीक है बेटा, अब यहां पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाह रहा हूं. मैं ये लास्ट वाला रिएक्शन रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक लाइन ऐड करनी है. आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं भी कॉपी किया कोई इतना मसला नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस लाइन. ठीक है, I just represented the butene का रिएक्शन इन अ skeleton फॉर्म, सो आई एम गोइंग टू रब दिस वन. उसको मैं रब कर रहा हूँ. देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 2 चीजें यूज होती हैं. द मेन रिएक्टेंट, जो आपका मेन रिएक्टेंट है, दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट. ये क्या कहलाता है? रिएजेंट. ठीक है, और ये कहलाती हैं कंडीशंस. क्या कहलाती हैं? कंडीशंस. कंडीशंस का मतलब होता है जनाब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट. ठीक है, तो कंडीशंस में क्या क्या चीजें आती हैं? कंडीशन में आता है जनाब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट मेनली, और सॉल्वेंट. आपने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, आपने इसे लिक्विड फॉर्म में लिया, आपने इसे एक्वस फॉर्म में लिया. एक्वस इज अ सॉल्वेंट. ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको ये
बात पता हो कि whenever they say reagent and conditions, make sure कि आप यही चीजें मेंशन करें. ओके, कॉपी डाउन. सो reagent and conditions का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. reagent का मतलब होता है योर मेन रिएक्टेंट, और कंडीशंस का मतलब होता है एनी सॉल्वेंट, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर. ठीक है, तो निकल 150 डिग्री सेल्सियस इज बेसिकली आर बेसिकली द कंडीशंस. ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज द मेन रिएक्टेंट जो कि जाके ऐड हो रहा है. दैट्स व्हाई ब्रोमीन वाले रिएक्शन में मैंने क्या लिखा था, नो सच कंडीशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां पे ना टेम्परेचर था, ना प्रेशर था, ना कैटलिस्ट. तो बहुत कॉमनली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये स्टेटमेंट सुनेंगे कि राइट डाउन द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग एल्कीन टू एन एल्केन. तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन plus nickel catalyst 150 degree Celsius. Hydrogen plus nickel catalyst 150 degree Celsius. These are the reagent and condition. ठीक है जनाब. So addition of hydrogen के बाद third reaction की तरफ जाते हैं, and the third reaction is with the addition of water या addition of steam. ये भी आप O levels में पढ़कर आ चुके हैं. पहले मैं जर्नल रिएक्शन लिखूंगा, इसका मैकेनिज्म भी हमने ऑलमोस्ट किया हुआ है. तो जर्नल रिएक्शन ये है कि यू हैव एल्कीन रिएक्ट करेगा H2O के साथ इन अ गैस फॉर्म. वाई इन अ गैस फॉर्म? बिकॉज द कंडीशंस आर H3PO4 aqueous as a catalyst, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 6 megapascals प्रेशर. अगर आप प्रेशर ना भी लिखें तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस आर इनफ. ठीक है, और आपका ये जो एल्कीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में. इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में. क्लियर? एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. H2C डबल बॉन्ड CH2. 2 मिनट रुकिएगा, आसान हो रही है. ओके बेटा, चल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ दिस आपको पता है वाटर के अंदर यू हैव H एंड OH. ठीक है ना, तो होगा क्या कि एक कार्बन पे H जाके ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पे OH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में. सो यू हैव दिस CH2O के साथ रिएक्शन हो रहा है विच इज स्टीम. द कंडीशंस आर this H3PO4 catalyst 300 degree Celsius temperature, and it convert into CH3 CH2OH. यानी जो आपके पास इथीन था, इथीन is converted to ethanol. ठीक है ना, इथीन कन्वर्ट हो गया किसमें, एथेनॉल में. आई होप के पॉइंट क्लियर है. सही है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल. सही है, यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने. इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, इसलिए हम आगे इसको. इंपॉर्टेंट बात इस एग्जाम्पल में है CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली द प्रोपीन. रिएक्शन हो रहा है सेम स्टीम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 कैटलिस्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ देयर आर टू ऑप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट. एक तो आप ये बनाएंगे, ठीक है, or there's another option possible, CH3 CH OH CH3. अब इस बात को समझ लीजिए. देखें, मैंने पहली वाली इस फर्स्ट प्रोडक्ट में मैंने क्या किया, आई प्लेस्ड हाइड्रोजन हेयर वाटर का, और OH मैंने प्लेस किया यहां पर. तो बन गया CH3 CH2 CH2OH. मैं ये भी तो कर सकता हूं कि मैं वाटर का OH यहां प्लेस कर दूं और H यहां प्लेस कर दूं. both are the addition reaction. If I do it like this कि मैं H या OH यहाँ प्लेस करूं और H, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट मिलेगी. The first one is propane 1 ol
द सेकेंड वन इज प्रोपेन टोल। क्वेश्चन ये है क्या ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? तो यस, बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट आर पॉसिबल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में मिलती हैं, एक वक्त में कोई एक प्रोडक्ट मिलती है, क्या होता है? तो उसके लिए समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये वाली जो प्रोडक्ट है ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, और ये कितनी मिलेगी? ऑलमोस्ट 90% आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। एंड दिस इज बेसिकली अ माइनर प्रोडक्ट। ये कौन सी प्रोडक्ट है? ये माइनर प्रोडक्ट है। और ये आपको कितनी मिलेगी? माइनर प्रोडक्ट आपको मिलेगी बाकी का ऑलमोस्ट लाइक 10%। ठीक है, तो इफ इन एग्जाम दे गिव यू दिस एग्जाम्पल और वो आपसे बोले जनाब आप हमें बताइए, HCl HBr सब पे ये बात वैलिड है, ठीक है, और वो आपसे बोले कि राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट और आप ऊपर वाली प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बननी है? तो उसको बनाने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसकी वन लाइनर रीजनिंग लिख लेंगे एंड दैट्स एनफ। आसान तरीका ये है कि देखो तुम्हारे पास यू हैव दीज टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। ये दो कार्बन है ना जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? कोई अनम्यूट करके बताए मुझे, हाउ मेनी हाइड्रोजन यू कैन सी ऑन दिस कार्बन? कौन बताएगा? 6. हाँ, बोलो भाई, इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं? कितने हाइड्रोजन लिखे हुए नजर आ रहे हैं? सर 1, एक। एक, गुड। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, दो। 2। अब देखो, अब आपके पास H2O में आपको H और OH ऐड करना है ना, एक कार्बन पे H ऐड करना है और एक कार्बन पे OH। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हाइड्रोजन मस्ट बी एडेड ऑन द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड एंड कंटेन मोर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन किस पे ऐड करना है? द कार्बन विच ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उन दो कार्बन की बात हो रही है, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है? हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड करना है जिसपे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। अब जरा अपनी मेजर प्रोडक्ट देखिए जो मैंने बनाई है। मैंने क्या किया है? हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन पे ऐड किया है, OH मिडिल वाले कार्बन पे ऐड किया है। क्लियर? तो इसको बनाने का तरीका ये है कि टू मेक मेजर प्रोडक्ट, hydrogen must be added on the carbon bonded to a double bond and contains more हाइड्रोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाने का तरीका क्या है? जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, द कार्बन विच ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन, आप उसके ऊपर ऐड कर देंगे हाइड्रोजन, और दूसरे वाले पे OH, अगर HCl की एडिशन हो रही है तो Cl नेगेटिव वहां दूसरे वाले पे ऐड कर देंगे एंड सो ऑन। ये जो रूल है, दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनी कोव रूल। ठीक है, अब नाम से पता चल गया होगा कि आपके पास ये एक रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रूल बताया था। ठीक है, इसका एक रीजन है, वो रीजन जब आप मैकेनिज्म बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाई दिस वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, तो आप रीजन लिखेंगे, द कार्बोकैटाइन formed in the major product is a secondary carbocation
secondary carbocation, which is more stable as compared to primary carbocation formed during formation of minor products. ठीक है, तो कार्बोकैटाइन जो फॉर्म होता है whenever you are making a major product, the carbocation is basically a secondary carbocation. ठीक है, जब आप मैकेनिज्म बनाएंगे और आप देखेंगे कि जो कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है, देखो जिस कार्बन पे OH लग रहा है उसी पे, तो बेसिकली जो कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है वो ये होता है आपके पास you have one hydrogen and you have two sides R group present. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। और ये कार्बोकैटाइन आपके पास फॉर्म होता है व्हेन यू राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जब आप मेजर प्रोडक्ट का मैकेनिज्म लिखते हैं तो आपके पास ये कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है, लेकिन जब आप माइनर प्रोडक्ट का मैकेनिज्म लिखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो कार्बोकैटाइन ये वाला फॉर्म होता है। आप मैकेनिज्म बना के अगर खुद से देखेंगे सो यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रीजन आपसे पूछा जाएगा तो आप रीजन सिर्फ वन लाइनर रीजन लिखेंगे। वो रीजन क्या होगा कि द कार्बोकैटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मेजर प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन विच इज मोर स्टेबल। और ये हम पढ़ चुके हैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म में कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर ग्रुप। इसमें दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा होता है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ग्रुप। ठीक है, making it less positive and more stable. In this one, you have one side alkyl chain attached. ठीक है, so minor product वाला less stable होता है। अब देखो जो ज्यादा stable होगा वो ज्यादा बनेगा, है ना, जो ज्यादा stable होगा वो ज्यादा बनेगा। That's why this carbocation form is almost 90%। और आपके पास ये वाला मेजर प्रोडक्ट, और जो कम स्टेबल होगा वो कम बनेगा। दैट्स व्हाई द माइनर प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट लाइक 10%। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबल होने का मतलब ये है कि बन रहा है और ज्यादा बन रहा है। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस। ठीक है, तो अब जरा इस कॉन्सेप्ट को एक दफा सुकून से देखिए, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। बनाना बहुत आसान है। टू मेक द मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन मस्ट बी एडेड ऑन द कार्बन दैट ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन। इसकी एक HCl और HBr में इसकी और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सर जो लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव नहीं होगा? नहीं नहीं, लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव जरूर होता है, लेकिन जो लेस स्टेबल होगा वो बन नहीं पाएगा मैकेनिज्म में। देखो मैकेनिज्म में किसी आयन का एक स्टेप में बनना, एग्जिस्ट करना और फिर दूसरे स्टेप में जो है वो रिएक्ट कर जाना। तो जब ये बनने की तरफ जा रहे होंगे ना, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो कोशिश करेगा कि वो मोर स्टेबल कैटाइन फॉर्म करे। ठीक है, ताकि वो कैटाइन जो है वो ज्यादा देर एग्जिस्ट करे और आगे रिएक्ट करे। तो ये बनने के बाद बनेगा ही आपके पास जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके। तो सर ये ठीक है, जो बाकी 10% बचे हुए हैं ये सारे के सारे दोबारा सेकेंडरी क्यों नहीं बन रहे? ये इसमें नहीं क्यों मतलब क्या रुक के रहे हैं हो इधर? ये रहे कि हाँ, हो ये रहे कि इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैक, कि किस डायरेक्शन से जो है वो आपके मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ना, और H पॉजिटिव पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करता, सॉरी पाई बॉन्ड H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, तो H पॉजिटिव जाता ही उस कार्बन की डायरेक्शन में है जिसके पास जाने से आपके पास जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बने। कुछ मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेशन या शेप की वजह से चले जाते हैं उस कार्बन की तरफ जिसके पास जाने से माइनर प्रोडक्ट बनती है। तो हमेशा 100% मेजर प्रोडक्ट नहीं बनती, सम कंटिमिनेशन माइनर प्रोडक्ट की रहती है। देखो कंटिमिनेशन ही कहेंगे ना जब जस्ट 10% बन रहा है तो। ठीक है ना, तो बेसिकली दैट्स दैट्स मेनली हमें मिलना सारा मेजर प्रोडक्ट ही चाहिए, लेकिन 10% हमें जो है वो फॉर सम सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन और समथिंग हमारे पास जो है वो
माइनर प्रोडक्ट मिल रही होती है। ठीक है, तो दोनों मिलेंगे 10% 20%। लेकिन ये है कि आपको सिर्फ दो तीन की पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, पहला की पॉइंट ये है कि हाउ यू कैन मेक द प्रोडक्ट। ठीक है, मार्कोनी-कोव रूल के अकॉर्डिंगली आपको यू शुड नो हाउ टू मेक द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड हाउ टू मेक द माइनर प्रोडक्ट। आसान है, कोई मसला नहीं है। आप देखें भाई, जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उनमें जो कार्बन जो है वो ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन। अब वो अगर आपसे रीजन पूछेगा एग्जाम में कि व्हाई यू मेक दिस प्रोडक्ट, तो आप लिखेंगे बिकॉज इन दिस मेजर प्रोडक्ट द कार्बोकैटाइन फॉर्म इज द सेकेंडरी कार्बोकैटाइन विच इज मोर स्टेबल। बस ये एक वन लाइनर रीजन आपने लिखना है और आप यू विल गेट द फुल मार्क फॉर इट। तो इसकी इतनी ही डिटेल। अच्छा, मैकेनिज्म आपको मेजर और माइनर दोनों का बनाना आना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म आपको देखें, याद रखिएगा कि मैकेनिज्म में मैं लेट मी शो यू द मैकेनिज्म फर्स्ट, फिर बात मेरी ज्यादा क्लियर होगी। सो इंट्रोडक्शन में जाते हैं और इंट्रोडक्शन में जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ, एंड दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैंने क्योंकि बोथ ऑफ दीज कार्बन, इथीन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। जहां दिल चाहे आप ओ एच लगाइए, जहां दिल चाहे एच लगाइए। ठीक है, क्लियर। सो अब अगर आप यहाँ बात करेंगे तो दिस इज द कार्बोकैटाइन विच इज द प्राइमरी कार्बोकैटाइन। यहाँ पे लगाओगे तो भी प्राइमरी कार्बोकैटाइन रहेगा। क्लियर। लेकिन आपको ये जो पॉजिटिव चार्ज आपने हमेशा उस कार्बन पे लगाना है जिस कार्बन पे आपने बाद में ओ एच नेगेटिव या Cl नेगेटिव को ऐड करना है। सही है, यहाँ आते हैं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को दोनों के कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन सिखा देता हूँ, मेजर और माइनर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ और इस मैकेनिज्म में मैं कंपैरेटिवली आपको दोनों की एडिशन की बात करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से कि कार्बोकैटाइन कैसे फॉर्म हो रहा है। अब मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा, पहले मैं लिख देता हूँ मेजर प्रोडक्ट का या माइनर प्रोडक्ट का, पहले लिखते हैं। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट का मैकेनिज्म। ये टेक्निकली मैं नॉर्मली मैं करवाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के कंफ्यूजन को और क्लियर करने के लिए हम लिख रहे हैं। तो मैं पहले माइनर प्रोडक्ट का रिएक्शन लिख लेता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O फॉर्म करेगा माइनर प्रोडक्ट विच इज CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, मैंने H लगाया उस कार्बन पे जिसपे कम हाइड्रोजन थे, तो मेरे पास ये बनी माइनर प्रोडक्ट। 10% वाली प्रोडक्ट का मैकेनिज्म मैं पहले लिख रहा हूँ। क्लियर। अब इसका मैकेनिज्म लिखने के लिए आपको पता है कि स्टेप वन में आपके पास क्या होगा बेटा। स्टेप वन में आपके पास H पॉजिटिव बनेगा, ये दोनों के लिए कॉमन होगा, HOH। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सही है, और ये वाला स्टेप होता है आपके पास H3PO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये आपको मिल जाता है H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, स्टेप टू में आप दिखाएंगे कि ये जो आपके पास कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन है, H है और CH3 है। ठीक है, ऐसे ही ना। इसको अटैक दिखाओगे तुम H पॉजिटिव का, पाई बॉन्ड अटैक करेगा H पॉजिटिव के ऊपर। सॉरी, आई हैव टू डू इट विद द रेड पेन। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से चेंज आएगा। अगर आपको अगर आपको माइनर प्रोडक्ट बनानी है तो आप क्या करोगे, आप H ऐड करोगे कहां पर, यहां पर, और इस कार्बन पे आप दोनों हाइड्रोजन ऐसे ही और यहां लगा दोगे। ये कार्बोकैटाइन बन गया। And you can see the carbon on which you have a positive charge have two hydrogen and one R group. तो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ, दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ठीक है, इन अ सिमिलर वे आगे जाएंगे और स्टेप थ्री के अंदर आप दूसरे कार्बन के ऊपर OH ऐड कर देंगे। तो कार्बोकैटाइन आपके पास बनाए जनाब, ये CH3 ऑलरेडी था, H ऑलरेडी था, ये वाला H आपने वाटर का ऐड किया, एंड देन यू हैव दिस पॉजिटिव प्लस, अब इसके ऊपर OH नेगेटिव आप ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 H H H और यहाँ
ठीक है बेटा, तो दिस इज बेसिकली योर माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? इन अ सिमिलर वे मैं इसी पेज पे मेजर प्रोडक्ट का मैकेनिज्म भी दे रहा हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ दीज टू। कोई भी एक मैकेनिज्म आपको लिखना आना चाहिए। और मैकेनिज्म इज क्वाइट इजी, मैंने बिल्कुल उसी तरह से मैकेनिज्म लिखा है जैसे हम इथीन का मैकेनिज्म करके आए थे। सो CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सर तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होएगा तो वो थोड़ा स्लो नहीं होगा? नहीं नहीं वो कंपैरेटिवली स्लो जरूर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होगा, लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा मिल रही होगी। क्योंकि देखो हम्म। ये वाला कार्बोकैटाइन ना बनेगा ही 10%। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये इसके बनने की पॉसिबिलिटी ही 10% है। ठीक है ना? और वो जब 90% होगा तो वो ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली स्लो रिएक्ट करेगा, लेकिन वो बनेगा क्वांटिटी में 90%। ठीक है ना? बस ये फर्क है। बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं तो ऑब्वियसली वो कम रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो बनेंगे ही ऑलरेडी ज्यादा। जो मैं मैकेनिज्म बन रहा हूँ ना, इस मैकेनिज्म में वो बनेंगे ही 90%। सो द मेजर प्रोडक्ट इज CH3 CHOH and then CH3. This is a major product. Yes, we know that this is a major product because we added a hydrogen on the carbon that already contain more hydrogen. अब इसका मैकेनिज्म भी मैं यहीं पे लिखूंगा ताकि आपको इसके मैकेनिज्म में पता चले कि फर्क क्या है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन स्टेप 2। स्टेप 1 तो दोनों में सेम होगा, है ना? स्टेप 1 में तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ब्रेक हो रहे हैं। या आप चाहें तो H3PO4 के लिख सकते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। स्टेप 2 ही है जो डिफरेंट होगा। अब स्टेप 2 में मैंने वही बनाया, कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन H H H एंड देन CH। और मेजर प्रोडक्ट के लिए मैंने H पॉजिटिव का अटैक बिल्कुल वैसे ही दिखाया। ठीक है? लेकिन मेजर प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ऐड किया ऑन द कार्बन दैट ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन। ठीक है? तो मैंने CH3 को ऐसे ही रखा, SH को ऐसे ही रखा, और मैंने हाइड्रोजन कहाँ ऐड कर दिया, हाइड्रोजन मैंने यहाँ ऐड कर दिया और इस पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख लीजिए, ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, एक R ग्रुप यहाँ लगा हुआ और एक R ग्रुप ये लगा हुआ। ठीक है? तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना है विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। क्या किया मैंने जनाब, गौर से देखिए, ये दो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड थे, इनमें से इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन। मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, हाइड्रोजन इसी पे ऐड किया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। जिस पे हाइड्रोजन ऐड होगा और H पॉजिटिव ऐड होगा, ऑब्वियसली उसके अपोजिट वाले कार्बन पे विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज बेसिकली द प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। और ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा ही 90% ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, दिस कार्बोकैटाइन रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव आके ऐड हो जाएगा मिडिल वाले कार्बन पे। ठीक है? तो स्टेप 3 दिखा देते हैं। You have a positive charge carbon CH3 here, H here, CH3 here, ये तीनों हाइड्रोजन लगा देंगे, OH नेगेटिव यहाँ लगा दीजिए। ठीक है? और अटैक दिखाइए कि ये OH नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है, उस साइड पे भी लिख सकते हैं आप इसे, और आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन रही है। आप देख लीजिए, सेकंड कार्बन पे आपके पास OH ऐड हो गया, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट यू गेट। सही है? तो ओनली डिफरेंस इन द मैकेनिज्म आपको समझ आ रहा है कि जब आप H पॉजिटिव पे अटैक दिखा रहे हैं विच इज दिस वन, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन अगर जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, अगर H वहां ऐड करके दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे तो माइनर प्रोडक्ट बनेगी, एंड कार्बोकैटायन इज द प्राइमरी। अगर आप यही अटैक दिखा रहे हैं सेम, और आप H इस कार्बन पे ऐड कर देंगे विच ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे विच इज दिस हाइड्रोजन, then you'll get the secondary carbocation और major product मिलेगी। That's the only difference in the mechanism। ठीक है? तो this is very important that you should know the difference between the mechanism of these two major and a minor product।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? आस्क क्वेश्चन एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। बताइए जनाब, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आई नो नो सर। कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा इसका रिवीजन बेटा। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होगा? क्योंकि इफ यू कीप लुकिंग एट इट, बार बार देखते रहोगे, आपको लगेगा कि यस यू गेट द कॉन्सेप्ट, बट यू व्हेन इट्स कम टू ड्राइंग द मैकेनिज्म, राइटिंग डाउन द मैकेनिज्म, गिविंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो फिर वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ऑर्गेनिक रिवीजन इज बेसिकली रिवाइज इट थॉरली एंड रीराइट इट as many time as you could। ऑर्गेनिक रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स को आपको रिवाइज करना है और आपको अच्छे तरीके से लिखना है। ये तो एक पार्ट है, दैट आई एम गिविंग यू द रिएक्शंस एंड अ मैकेनिज्म एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मैकेनिज्म्स इन डिटेल, और ताकि आपको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑब्वियसली अ गुड रिवीजन इज रिक्वायर्ड, रिएजेंट कंडीशंस याद होने चाहिए। अच्छा, नोट करके, इफ यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सर एक CH3, क्वेश्चन पूछूं? पूछो बेटा। सर वो हम CH3 जो है आपने ऊपर जो लगाया था फर्स्ट कार्बन पे, वो हम सेकंड कार्बन पे लगा सकते हैं? सर अभी जो स्टेप टू स्क्रीन पर देखिए। है, जो जी सर, स्क्रीन पर है ये इसकी सी बात एच कर। थ्री जी, हाँ, ये सी तुम एच ये थ्री कह रहे जो हो। आपने फर्स्ट कार्बन पे लगाया है, हाँ, तो अगर हम लोग इसको सेकंड कार्बन पे लगाते हैं तो और OH यहाँ तब भी हो लगाते हो। सकता है ना? हाँ, अगर सेम हम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है फराज, कोई फर्क नहीं है बेटा। जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है ना फराज, उसका नाम होना चाहिए 2 प्रोपेनॉल, सही है ना? यस सर। और जो तो आप सर कह रहे हो हम, उसमें भी। तो सर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब प्लस साइन जो हाँ, उस साइड पे चला जाएगा क्योंकि उसके पास कम वो है हाइड्रोजन। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने तो आपको एक बहुत बेसिक सा तरीका बताया ना, आप इस बेसिक तरीके को फॉलो करें। इसमें इसमें थोड़ा सा अगर ओवर थिंक करोगे ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट मेक अ मिस्टेक। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सिंपल सा ही इसको लेके चलते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन H3PO4 कैटलिस्ट 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट लिखिए। तो आपको क्या ये बात नजर आ रही है कि आपके पास दिस इज द हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? एक हाइड्रोजन। दिस इज अनदर कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? अच्छा, उसी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन काउंट होंगे, उस चेन में कितने लगे हैं उससे फर्क नहीं। इस कार्बन के ऊपर कितने बोथ ऑफ दीज कार्बन कंटेन वन वन हाइड्रोजन। तो आप जिसको भी दिल चाहिए, जहां भी दिल चाहे, आप OH लगा दीजिए, इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। ठीक है, नो मेजर नो माइनर प्रोडक्ट। और अगर आप वहां लगाएंगे तो भी आपके पास यही प्रोडक्ट मिलेगी, विच इज ब्यूटेन टू ओल। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास ब्यूटेन टू ओल मिल रही है, और उस केस में भी जैसे दिल चाहे आप लगा दीजिए। क्लियर? एक और एग्जांपल देने अपनी बात को क्लियर करने के लिए, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 प्लस सेम रिएजेंट एंड कंडीशन, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन अगेन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें दीज आर द 2 कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, एक ये वाला कार्बन है बेटा, और एक ये वाला कार्बन, एंड बोथ ऑफ दीज कार्बन कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन? वन हाइड्रोजन। इन दिस केस आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगी वो तो डिफरेंट होंगी। यहाँ CH3, CH2 ऐसे ही है। अगर आप पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे वाले पे OH लगा देते हैं, तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगी, और you will get another product CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3। ठीक है ना, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगी। इसमें आपके पास दोनों की दोनों, बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट आर बेसिकली 50-50%। नो मेजर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, नो मेजर प्रोडक्ट। दोनों में सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन रहा है, दोनों का कार्बोकैटाइन जो है वो इक्वली स्टेबल होगा। इसलिए आपके पास जो है वो नो मेजर और माइनर प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो द बोथ प्रोडक्ट्स आर 50-50%। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? सो अगर आपके पास 2 कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड कंटेन
बोथ कंटेन सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, दोनों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन हो, तो कोई मेजर माइनर प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। आप जो प्रोडक्ट लिख देंगे वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगी। क्लियर है? मेजर और माइनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा जब आता है जब आपके पास जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट टू गेट अ कॉल। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इंपॉर्टेंट नोट एक लिख लेते हैं यहां पर, एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI have the same concept of major and minor product। ठीक है बेटा, इसी बात को लेते हुए हम अपने सॉरी मैंने इसको मैकेनिज्म नंबर क्या दिया था, रिएक्शन नंबर 3 था। रिएक्शन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, which is addition of HCl, HBr, HI। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान है, इसके लिए तो कोई कंडीशंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, HCl, HBr और HI के लिए no such conditions are required। So yes, if you have a chemical reaction in which you have CH3, CH2, CH double bond CH2 and you are adding HCl, if you have तो पहले इस रिएक्शन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। No such condition for this reaction, no catalyst, nothing else। ठीक है, so CH3, CH2, CH2Cl और CH3, CHCl, CH3। अब मुझे जल्दी से बताओ कि दिस फर्स्ट वन इज अ मेजर प्रोडक्ट और अ माइनर प्रोडक्ट, ये वाली। सर माइनर। गुड, ये है आपके पास माइनर और ये आपके पास है मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? तो द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, सेम कॉन अब HCl की जगह अगर HBr होगा तो इट्स गोइंग टू बी द सेम रिएक्शन। So let me just give you one reaction with the HBr as well, CH3, CH2, CH double bond CH2। मैंने थोड़ा सा रिएक्टेंट चेंज कर लिया एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। आप खुद से ट्राई करो, एक मेजर प्रोडक्ट बनाओ, एक माइनर प्रोडक्ट बनाओ इस रिएक्शन की जल्दी से। मैं भी आके कॉपी चेक करूंगा किसने सही बनाया है किसने गलत। ओके, तो CH3, CH2, CHBr, CH3 मेजर है माइनर है? मेजर। गुड, एक्सेलेंट। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा देखो, मुझे खुशी है कि आप लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं और आप लोगों में से बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये बात आपको समझ में रहेगी, मतलब यू रिमेम्बर इट इफ यू रिवाइज इट थॉरली, अच्छे तरीके से। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब कल इंशाल्लाह अगर हम मिलेंगे, जिंदगी रही, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से याद होंगी। एंड व्हाइल यू रिवाइजिंग इट, अगर कोई जहन में कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज आप यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन, तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं। लेकिन ये लेक्चर बहुत स्लोली, बहुत तरीके से, बहुत डिटेल में डिलीवर कर रहा हूँ। क्लियर? एंड ताकि आपको जो है वो सारी चीजें अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप
एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो भी होता है कि राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट, राइट डाउन द माइनर प्रोडक्ट, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर? So this is about the addition of steam, the addition of HCl, addition of HBr, addition of H2O, addition of bromine, addition of hydrogen. We done with the addition reaction here. Electrophilic addition reaction हमारे जो है वो यहाँ पर complete हो गया। Another very important reaction of this alkene is basically the oxidation of alkene. अच्छा, this reaction is not only important in AS level but also in A2, ठीक है? ऑक्सीड। अब सबसे पहले द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं एल्कीन की ऑक्सीडेशन के लिए, बेसिकली वी नॉर्मली यूज टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको याद हो तो हम कौन कौन से दो ऑक्सीडाइजिंग, एक तो K2Cr2O7 होता है और एक KMnO4 होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन के लिए हम एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट यूज करते हैं, या पर मैग्नेट भी से कहते हैं, ठीक है? एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस हीट, ठीक है? इसी हम एसिडिफाइड हैलाइड्स क्यों नहीं यूज पोटेशियम, कर लेते? हैलाइड्स नहीं नहीं बेटा, देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ द रिएजेंट एंड कंडीशंस। आगे आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजन एल्केन्स में, नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि यू आर मेकिंग अ रिएक्शन विद द सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? बट अगर आपने एक्वस की जगह पे लिक्विड ले, एक्वस की जगह पे यानी वाटर में डिसॉल्व करने के बजाय इफ यू डिसॉल्व इट इन अल्कोहल, तो प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो रिएजेंट एंड कंडीशन से प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसी बात को लिखने का तरीका एक ये भी है, आपके MnO4 स्लैश H2SO4 प्लस हीट भी कर सकते हैं, ठीक है? बल्कि हीट तो हम यहाँ पर नहीं लिखे, सॉरी बेटा, अगर हम हीट लिखेंगे तो वो रिएजेंट एंड कंडीशन हो जाएगी। हम सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, तो थर्ड मेथड इसी बात को लिखने का, इफ इट रिटन MnO4 नेगेटिव स्लैश H पॉजिटिव, ऑल दीज स्टेटमेंट का मतलब यही है कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और KMnO4 इज बेसिकली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम में एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट लिखा हुआ हो, KMnO4 स्लैश H2SO4 एक्वस लिखा हुआ हो, और इट्स रिटन MnO4 नेगेटिव स्लैश H पॉजिटिव, इन सारी बातों का मतलब यही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में आप नहीं कर सकते, बट एग्जाम में समटाइम वी यूज अ नोटेशन ऑफ दिस, हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखने का मतलब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी बातें हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली सिर्फ ये लिख के काम नहीं चला सकते, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट्स द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of a oxidizing agent. In a similar way, reducing agent की short hand notation क्या है? आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H लिख देते हैं, तो that's the notation for the reducing agent. Clear? So यहाँ तक बात ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन दो तरह से होती है, एक कहलाती है माइल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है? माइल्ड ऑक्सीडेशन बहुत आसान है। माइल्ड ऑक्सीडेशन में हम यूज करते हैं, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएजेंट एंड कंडीशंस, माइल्ड ऑक्सीडेशन की और आसान सी याद रखिएगा, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है? याद रहेगी, बहुत आसान है। कोल्ड और डाइल्यूट का मतलब ही है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ माइल्ड कंडीशन, ठीक है? क्लियर? कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, डन।
और बहुत आसान रिएक्शन है, हमेशा बच्चों को इस रिएक्शन में कभी मसला नहीं होता, इट्स वेरी इजी। तो रिएक्शन है आपके पास बेटा, एल्कीन है, आपने इस एल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाई कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाई के MnO4 से, तो कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड के MnO4, तो ये चल चेंज हो जाता है डायओल में। डायओल का मतलब क्या हुआ? अल्कोहल विद 2OH ग्रुप्स, है ना। डाई का मतलब टू और ओल का मतलब अल्कोहल। अभी रिएक्शन की एग्जांपल देते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। एंड आई सेड कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यू हैव CH, सॉरी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को, आई थिंक इट्स बेटर वे ऑफ राइटिंग इट, कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज इथीन। और अगर मैं ये, अब ये सारे रिएक्शन माइल्ड कंडीशन वाले हैं, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा कोल्ड डाइल्यूट एसिड ऑफ HiCamino4। आपके पास प्रोडक्ट बनेगी बेटा CH2OH, CH2OH। आपने क्या किया बेटा, आपने डबल बॉन्ड खत्म किया, और जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड था, आप उन्हें उन दोनों कार्बन पे OH OH प्लेस कर दिया। तो ये कन्वर्ट हो गया इथीन से इथेन डायओल में। सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह की एल्कीन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। माइल्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो रही है, आपने CH3 ऐसे ही रखा, CH के साथ OH लगा दिया, डबल बॉन्ड खत्म किया, CH2 के साथ यू प्लेस्ड OH। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोपेन 1,2 डायओल, डायओल। ठीक है, सारे के सारे डायओल में कन्वर्ट हो जाएंगे। वन मोर लास्ट एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अगेन माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, so it's getting converted to CH3 CHOH CHOH CH3। ठीक है, एक क्या किया, डबल बॉन्ड खत्म किया, और एक OH मैंने यहां प्लेस किया, और एक OH मैंने इसके बराबर में प्लेस किया। क्या फर्क, आसान है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, इसको नेम कर देने 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, तो इट्स ब्यूट। और सेकंड और थर्ड के दरमियान OH है, तो ब्यूट, सॉरी ब्यूटेन 2,3 डायओल। ठीक है, ब्यूटेन 2,3 डायओल। क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट जस्ट इन केस इफ दे माइट आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ स्केलेटन फॉर्म। वैसे तो अभी हम रिएजेंट कंडीशन याद कर रहे हैं, जब स्केलेटन फॉर्म में हमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हम ये सारी एग्जांपल स्केलेटन फॉर्म में दोबारा करेंगे। ठीक है, सेम रिएजेंट एंड कंडीशंस हैं। क्या किया, डबल बॉन्ड खत्म किया, आई प्लेस्ड वन OH here with a small line and I placed one OH here with a small line। ये जो मैंने सेकंड वाला OH लगाया है, दिस OH, ये मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, जैसे दिल चाहे आप लिख दीजिए, डजेंट मैटर, इसमें इतना कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू एलिमिनेट दिस डबल बॉन्ड, और जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उनका डबल बॉन्ड हटा देना है, एक एक OH लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, सो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन? सर एक मिनट, आपने वो वाई क्यों बनाया है, ब्रांच क्यों बनाया है? जैसा रिएक्टेंट था वैसा मैंने, मुझे रिएक्टेंट ही गिवन था बेटा। देखो, जो रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट मैंने बिल्कुल इसी तरह था, ये जिस तरह गिवन था मैंने उसी तरह से प्रोडक्ट में रेप्लिकेट कर दिया, दैट्स इट। नहीं तो सर ये ब्रांच कैसे बना है?
ये ब्रांच है ना, ये 1 2 3 4, ये बेसिकली अगर मैं आपको इसका डिस्प्ले फॉर्म बनाऊं तो ये है कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, बोलो हाँ। यस। यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। देखिए मिथाइल ब्यूटीन है ना ये। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डबल बॉन्ड को खत्म किया, एक OH यहाँ लगाया, एक OH यहाँ लगा दिया। आप बोले क्या अच्छा, गलत किया मैंने? सॉरी, मुझे लगा आप ऊपर वाले रिएक्शन को स्केलेटल फॉर्म में दिखा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दैट्स मैं हमेशा अलग अलग एग्जांपल देता हूँ बेटा, तो अच्छा, दिस इज अ ओके ओके। डिफरेंट एग्जांपल। ओके, बस सही है, हाँ वो उसमें तो ब्रांच नहीं है ना। ठीक है बेटा, सही है, क्लियर है। सो दैट्स बेसिकली डिफरेंट एग्जांपल ऑफ मिथाइल ब्यूटीन। और आई होप कि माइल्ड ऑक्सीडेशन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सही है। थोड़ा सा मैं टाइम से ऊपर जा रहा हूँ बेटा, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट इमीडिएटली कर लें। सो व्हाट यू रिकमेंड, शैल वी कंटिन्यू इट और गिव अ फ्यू मिनट्स ब्रेक? कंटिन्यू कंटिन्यू। जान छोड़ा है ना। ओके, B part, second part, which is very, very important. Second part is basically complete oxidation. अब जरा इस complete oxidation को आप ध्यान से समझिएगा, और यही वो सारा मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सिमिलर वे में पॉसिबिलिटी है मैं आपको ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन समझा सकूं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इसको मुझसे पूछेंगे, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमने पहले कंडीशंस क्या यूज करी थी माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए? कोल्ड, डाइल्यूट, एसिडिफाइड, केमिनोफोर, है ना बेटा। दीज आर द कंडीशन फॉर माइल्ड ऑक्सीडेशन। अब मैं आ रहा हूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की कंडीशन की तरफ। सेम रिएजेंट होगा, कोल्ड की जगह हॉट हो जाएगा, डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। एसिडिफाइड वैसे ही रहेगा, और केमिनोफोर सेम रिएजेंट, लेकिन कोल्ड डाइल्यूट के बजाय अब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हॉट कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल करें, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट की जगह हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दीज आर द कंडीशन। कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, आपको बहुत क्लियरली एग्जाम में लिखा हुआ होगा कि आइदर यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट विद अ कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड केमिनोफोर और अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केमिनोफोर। सेम सेम रिएक्शन होगा। सिर्फ एक बात समझिए, देखें तो समझने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से। जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, द कार्बन विच इज अ बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, इसकी 3 कंडीशंस आपके पास पॉसिबल हैं। इसकी बाकी 2 वैलेंसीज हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन से फिल हो रही हो, है ना, ऐसे ही ना। थोड़ा सा स्मॉल लिखना चाह रहा हूं। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, एक पॉसिबिलिटी ये कि इसके दोनों बाकी की 2 साइड पे हाइड्रोजन लगे हों, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये वाला कार्बन, आपको नजर आ रहा है ये वाला कार्बन, बिल्कुल ऐसे ही ना। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड माइट कंटेन 2 हाइड्रोजन। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है उसके एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही हो और एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ हो, यानी ये CH की फॉर्म में हो, जैसे कि ये सारे कार्बन लिखे हुए हैं, देखें दिस इज अ कार्बन, ये एक तरफ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक तरफ कार्बन चेन कंटिन्यू हो रही है, ऐसे ही है। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। एक थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास है कि द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, उस पे कोई हाइड्रोजन ना हो, बल्कि दोनों साइड कार्बन की चेन कंटिन्यू हो रही है। इट कुड बी सिमिलर चेन, इट कुड बी अ डिफरेंट चेन। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं अबाउट द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। तो देखो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में होता क्या है कि आपका डबल बॉन्ड से मॉलिक्यूल 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कार्बन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो अलग प्रोडक्ट देता है, और राइट साइड वाला पार्ट अलग प्रोडक्ट देता है। अब यहां पर समझते हैं, द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड,
अगर इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो जब ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और आपको प्रोडक्ट बनानी होगी इस कार्बन से, कि ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था, ये कार्बन क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो इफ द कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड कंटेन टू हाइड्रोजन, तो ये कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं देगा, ये कार्बन चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, और इसमें कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ऐसा कार्बन कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इन अ सिमिलर वे द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, अगर उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हो लाइक दिस, तो ये जो CH वाला हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में, और वो जो R ग्रुप लगा हुआ है वो R ग्रुप वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, सो अगर द कार्बन which is bonded to a double bond contain one hydrogen, it will form a carboxylic acid। ये क्या बनाएगा? It will form a carboxylic acid। क्लियर? मैं इसको और क्लियर करूंगा साथ साथ एग्जाम्पल देके। तो देखिए, मैं अभी इन 2 कार्बन की एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑब्वियस है इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा। रिएक्शन हो रहा है हॉट कॉन्स्टेंट KMnO4 के बाद साथ। ठीक है, सो देखिए, दिस इज द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये वाला साइड एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं बेटा आपको? 2 हाइड्रोजन, तो ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। And now this is the second carbon which is bonded to a double bond. कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? एक हाइड्रोजन और एक CH3। तो CH3 तो वैसे ही रहेगा, और ये जो CH है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और एग्जांपल देता हूं अपनी बात समझाने के लिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताओ, ऊपर वाली एग्जाम्पल। मिलेगी। सो हम, हाँ, तो हमें इस कार्बन की पहले बात करते हैं। तो दिस कार्बन विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये दूसरी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें तो कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा CH3 CH2 वैसे ही रहेगा विच इज द R ग्रुप। CH विल कन्वर्ट इनटू अ कार्बन। तो आपने सिर्फ क्या करना है बेटा? CH को CO2H में कन्वर्ट कर देना, एंड दैट्स इट। ऐसे यहां तक कॉपी करो, फिर मैं और आखिरी बात करूंगा अबाउट द कार्बन विच कंटेन नो हाइड्रोजन। ठीक है, तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 में आपको हमेशा यू विल गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, डबल बॉन्ड के राइट साइड वाला अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और लेफ्ट साइड वाला पार्ट अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, डिपेंडिंग ऑन दैट कार्बन, अगर उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना के एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इफ द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड कंटेन वन हाइड्रोजन, तो वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा CH, और R ग्रुप यानी कार्बन की चेन वैसे की वैसे ही कॉपी रहेगी। ठीक है, क्लियर? इसी बात को लेके चलते हुए लेट मी जस्ट गिव यू द लास्ट केस। क्लियर? जब ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, उस पे कोई हाइड्रोजन ना हो, तो ये वाला जो कार्बन है ना जिसपे कोई हाइड्रोजन नहीं है, आपने क्या करना है? ये दोनों R ग्रुप वैसे ही लिखने, ठीक है, और इस वाले कार्बन को कन्वर्ट कर देना है कीटोन में, बस दैट्स इट। इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? कीटोन, यानी C डबल बॉन्ड O में, बस इतना सा काम करना है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इफ यू हैव 2 हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड इफ यू हैव 1 हाइड्रोजन, एंड इफ यू हैव नो हाइड्रोजन आप इसे कन्वर्ट कर देंगे कीटोन में। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। सर नो CH3, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाले का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं?
है ना बेटा, दो एग्जांपल्स दी तो है मैंने, ये दिस इज द कार्बन ये डाइऑक्साइड, उसी नो की है। ऑर्गेनिक। हाँ, अच्छा ये इसी की तो सही। है। ठीक है ना, तो दिस इज बेसिकली नो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको एंड में, जब आपको मैं या कुछ एग्जांपल ज्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, तो एक एग्जांपल होगी। ठीक है, चल CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, अब देखो ये इस मॉलिक्यूल को जरा गौर से समझते हैं आप अच्छे तरीके से। नाउ दिस इज वन पार्ट, है ना, दिस इज द वन पार्ट, ये वाला पार्ट अलग है, डबल बॉन्ड के इस तरफ वाला। अब इसका और ये दूसरा वाला पार्ट, दिस इज डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग पार्ट है ना, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे डिपेंडिंग ऑन जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। ऐसा ही है ना। अब अगर मैं बात करता हूं अबाउट दिस फर्स्ट कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन, तो इस पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं बेटा आपको? हाउ मेनी हाइड्रोजन यू कैन सी ऑन दिस वन? नहीं हुआ हाईलाइट ये वाले? हाँ, इस पे वन है, तो ये किस में जाएगा? वन कार्बोक्सिल। हाइड्रोजन कार्बोक्स, तो इसका CH3 मैंने वैसे ही रखा और इसको कन्वर्ट कर दिया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3CO2H। ठीक है, अब दिस इज द सेकंड कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? कोई नो। भी हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, और इसके दोनों साइड क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। ठीक है, दैट्स हाउ यू मेक द प्रोडक्ट ऑफ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, मैंने कहा कि रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन इस तरह के नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्पेशली द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। If something is important, it doesn't necessarily mean that this thing is difficult. Important जरूर है, लेकिन difficult नहीं है। आपको इसको एक दफा इस तरीके से समझना पड़ेगा। देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है ना बेटा, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, सॉरी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। उस कार्बन पे या तो दो हाइड्रोजन होंगे, तो उस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना, या तो उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा तो उस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, बाकी जो कुछ उस पे R ग्रुप लगा हुआ है वो वैसे ही रहने देना। अगर उस पे कोई हाइड्रोजन ना हो तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देना, R ग्रुप वैसे का वैसे ही रहने देना, बस इतना सा काम है। इसी बात को समझने के लिए इफ आई गिव यू एन एग्जांपल इन अ स्केलेटन फॉर्म, ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको स्केलेटन फॉर्म में करवाऊं, देखिए आसान सी एग्जांपल है। कैसे वर्क आउट करेंगे? दीज आर द टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। पहले चेक कर लेते हैं पेंसिल से कि इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो भाई ये दो बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे हैं, इसमें दो हाइड्रोजन है, एंड दिस कार्बन इज मेकिंग फोर बॉन्ड्स ऑलरेडी, नो हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन द सेकंड वन। ठीक है ना, पहले वाले पे कितने हाइड्रोजन है? यू हैव टू हाइड्रोजन, क्योंकि दो बॉन्ड बनाया था, दो हाइड्रोजन है। दिस कार्बन इज मेकिंग 1 2 3 4 बॉन्ड, सो देयर इज नो हाइड्रोजन हियर। अब क्या करेंगे? यहां से ब्रेक करेंगे, सो दिस शुड फॉर्म, ये वाला कार्बन क्या बनाएगा? ये वाला कार्बन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये वाला कार्बन क्या बनाएगा? दिस वाला कार्बन विल फॉर्म अ कीटोन, क्योंकि इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए अभी इसके डिजाइन को मैं वैसे ही रख रहा हूं, 1 2 3 और 4, अभी वैसे ही डिजाइन रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको कन्वर्ट कर दें कीटोन में। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इस कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया और दूसरा कार्बन
डबल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका आंसर स्केलेटन में क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर स्केलेटन में नहीं होगा, बिकॉज स्केलेटन इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्केलेटन कभी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होती। ठीक है बेटा। सो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। कॉपी दीज एग्जांपल, इसको कल तक कंप्लीट करो रिवीजन के बाद, एंड ब्रिंग इट टुमारो। कल मैं सबकी नोटबुक में चेक करूंगा कि ये एग्जांपल्स आपने सॉल्व करी हैं या नहीं। सर ऊपर ठीक है, आपने जब ये अभी मुझे कीटोन की आंसर नहीं स्केलेटल, चाहिए। सर जब अभी हाँ आपने हाँ, बोलो कीटोन बेटा। का स्केलेटल फॉर्मूला ड्रॉ किया, ये शेप अलाउ है क्या? मैंने आपको समझाने के लिए किया है, 1 2 3 4 है ना, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके। zigzag में आप हाँ, आप ये दिस इज द मोर मोर रिकमेंडेड वे, लेकिन अगर आप इस तरह भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन हमने जो फॉर्मेट सीखा है, हम उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा लेकिन चूंकि अपनी बात को एलिब्रेट करना था, समझाना था, इसलिए मैंने इसको कीटोन फॉर्म को में ऐसे ही रखा। ठीक है जी, चले फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट। और मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप इन एग्जांपल्स को घर पे कॉपी करेंगे और सॉरी कंप्लीट करेंगे। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन वाली बात नहीं है कि आप डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे। ये सारी एग्जांपल्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन की है, यानी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ आपको रिएक्शन करवाना है। सो जनाब, H2C, डबल बॉन्ड CH2। सही है, इन सब की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट, दो दो प्रोडक्ट आप लिखेंगे। Okay, beta. So copy this, and then we're done with. We will continue it inshallah tomorrow. And then the most important thing is that we almost done with the alkene only. The addition polymerization जो O levels वाला part है, वो बस सिर्फ हमें देखना है. And then we're done with the hydrocarbon alkanes and alkenes. ठीक है, तो इसे copy कर लीजिए. I'm just coming back to this screen in a while. एक मिनट रुकिएगा.